Hello friends, I am Sameer Avasthi, Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering from Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology in Lucknow. Today I am going to teach you object oriented system design and my topic is activity diagram, process and thread, event and signals. Now first is, what do you mean by activity diagram? In UML, the activity diagram is used to demonstrate the flow of control within the system rather than implementation. Activity diagram model the concurrent and sequential activity. The activity diagram helps in envisioning the workflow from one activity to another activity. Activity diagram put the emphasis on the condition of flow and the order in which it occurs. The flow can be sequential, branched, concurrent, and to deal with the such kind of flow, the activity diagram has come up with a fork and a join. Means यहाँ पे activity diagram में flow of control को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें मिलती हैं. First one is the fork and other one is the join. Okay. Now this is the fork and this is the join. Now the component of an activity diagram. Activity, the categorization of behavior into one or more action is termed as an activity. Basically, if one can ask you what is an activity, then it is the categorization of the behavior into one or more action is termed, this is known as the activity. In other words, it can be said that an activity is a network of nodes that are connected by the edge. The edges depict the flow of execution. It may contain action node, control node or object node. The control flow of activity is represented by control nodes and object node that illustrate the object used within an activity. The activity are initiated at the initial node and are terminated at the final node. Activity partition or swim lane. What is partition or what is swim lane? Now swim lane is used to cluster all the related activity in one column. अगर मेरे पास कई सारी एक्टिविटी हैं और मैं उनको क्लस्टर करके एक साथ रखूँ, एक कॉलम में रखूँ, एक रो में रखूँ, तो मैं उसको बोलूँगा दिस इज ए स्विम लेन और वी कैन रिप्रेजेंट स्विम लेन हियर, दिस इज ए स्विम लेन. ऑल द एक्टिविटीज आर हियर. एक साथ सारी एक्टिविटी कहाँ आ गई? इस क्लस्टर में आ गई. तो इस ऐसे क्लस्टर को स्विम लेन बोला जाता है. इट इज़ यूज टू ऐड मॉडुलरिटी ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम. यहाँ पे मॉडुलरिटी ऑफ एक्टिविटी डायग्राम, इट प्रोवाइड द मॉडुलरिटी. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट स्विम लेन इन द एक्टिविटी डायग्राम. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्विम लेन को ही इनकॉर्पोरेट करें, सिस्टम में यूज़ करें, बट इट इज़ यूज टू ऐड मोर ट्रांसपेरेंसी टू द एक्टिविटी डायग्राम. एक्टिविटी डायग्राम में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करा देता है स्विम लेन, क्योंकि आप एक क्लस्टर को यूज़ करते हैं यहाँ पे. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड okay, this is an activity, picture of an activity diagram and this is a swim lane. This is a swim lane. It is a like an cluster. It is like an cluster. Okay. Now moving toward the fork. Fork and join node generate the concurrent flow inside the activity. A fork node consists of one inward edge and several outward edge. एक इनवर्ड एज होगा. फॉर्क को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दिस इज ए फॉर्क, दिस इज ए फॉर्क, वन इनवर्ड एज एंड सेवरल आउटवर्ड एज. दिस more than two edges are possible. A fork node consists of one inward and several outward. If the same, it is same as that various decision parameter. Whenever a data is received at an inward edge, it gets copied and split crossway various outward edge. It split a single inward flow into multiple parallel flow. Elements of conceptual modeling, there are three basic elements are we describe here. Now moving towards the join node.
fork and join are these two type of nodes are there. Join nodes are the opposite of fork node. अगर मैं fork node के opposite node की बात करूँ then it is join node. Its join node is a logical and operation is performed on all the inward edge as it is synchronize the flow of input across the one single output means outward edge. तो यहाँ पे जॉइन नोड्स में हम बोल सकते हैं इट्स ए लॉजिकल एंड ऑपरेशन. जॉइन नोड को हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन की तरह डील करेंगे. देखते हैं कैसे होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉर्क एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ जॉइन. फॉर्क एंड जॉइन, single edge, this is a single edge, one single edge, inward edge and two or many more than two or more than two. यहाँ पे मैंने दो रखे हैं, दो हैं लेकिन दो से ज़्यादा भी पॉसिबल हैं. तो ये हो गया फॉर्क एंड दिस इज अ जॉइन. देर आर दिस इज एक्ट एज ए ऑपरेशन एंड ऑपरेशन. देखिए दिस इज द जॉइन. इट्स ए लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड on all the inward edge. यहाँ पे it's a logical and operation performed on all the inward edge. This is and one is only one outward edge is there. So, this is an operation of the join node. Now, what is pins? Pin basically it is a small rectangle which is attached to the action rectangle. It clear out all the messy and complicated thing टू मैनेज द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एक्टिविटी. तो पिन से हम जितने भी इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हैं, मैसी थिंग्स हैं, उनको एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर लेते हैं. वहाँ पे पिन का यूज़ करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं विच अटैच टू द एक्शन रेक्टेंगल. जो हमारा एक्शन रेक्टेंगल है उसी के साथ अटैच होता है. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट नोड दैट प्रिसाइसली रिप्रेजेंट वन इनपुट टू और आउटपुट फॉर्म ऑफ द एक्शन. नाउ notation of an activity diagram. Again activity diagram basically there are four notation: initial state, final state, decision box and action box. There are basically four type of notation. Initial state में क्या होगा? It depict the initial stage or beginning of the action. Final state depict the final stage, control flow and object flow end. Decision box, if you want to take some decision, then it makes sure that the control flow or object flow will follow only one path. Means अगर आपको यहाँ पे एक decision box लगाना है, you want to move left or right, left or right. This is, suppose this is a decision box. Decision box you can in this form, this is a decision box. This is a decision box. You want to move left or right. Then only one decision can take place. So, decision box will follow only one path. You must remember that decision box process only one path, and action box represent the set of actions that are to be performed. These are the action box. Now, notation of an activity diagram is, these are the some notations. Initial state can be represented in this manner. Action box can be represented as rounded corners, rectangle of rounded corner. Decision box, this is a diamond shaped decision box, and the final state can be written as, means dark circle having some round shape here. This is the final state. Now, why use activity diagram? Why we use an activity diagram? An event is created as an activity diagram encompassing the group of node associated with the edge, means this is the one reason. Now, to model the behavior of an activity, they can be attached to any modeling element, then we use activity diagram. It can model use case, classes, interfaces, components, collaboration and many more. It mainly model process and workflow, models processes and workflow. It envision the dynamic behavior of the system as well as the construct a runnable system that incorporate forward and reverse engineering. It does not include the message part, means activity diagram does not include the message part, which means
मैसेज फ्लो इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन एन एक्टिविटी डायग्राम। तो यहाँ पे मैसेज फ्लो नहीं दिखाया जाएगा एक्टिविटी डायग्राम में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैसेज फ्लो आपको नहीं दिखाना। देन इट इज़ द सेम एज द फ्लो चार्ट बट नॉट एग्जैक्टली द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप सब लोग बनाते हैं, फ्लो चार्ट आपने सीखा होगा, तो ये बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरीके से होता है, लेकिन एग्जैक्टली फ्लो चार्ट भी नहीं इसको बोल सकते। एंड द मेन देयर इज ओनली इट इज़ यूज टू डिपिक्ट द फ्लो बिटवीन सेवरल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के बीच में जो फ्लो होता है उसके लिए इसको एक्टिविटी डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड फॉर ड्राइंग एन एक्टिविटी डायग्राम। अब there are basically 3 rules. The meaningful name should be given to each and every activity. Identify all the constraint, acknowledgeable and activity association. When to use activity diagram? आपको activity diagram कब use करना है? To graphically model the workflow in an easier understandable way. सेकेंड इज द टू मॉडल द एग्जीक्यूशन फ्लो एमंग सेवरल एक्टिविटीज। एक हमें मॉडल बनाना है, मॉडल तैयार करना है दैट फॉर द एग्जीक्यूशन फ्लो एमंग सेवरल एक्टिविटी, देन वी यूज एक्टिविटी डायग्राम। टू मॉडल द कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन और एन एल्गोरिथम एम्प्लॉयड विद इन द सिस्टम, देन वी यूज एक्टिविटी डायग्राम। टू मॉडल द बिजनेस प्रोसेस एंड इट्स वर्क फ्लो, देन वी यूज द एक्टिविटी डायग्राम। To envision the dynamic aspect of the system, then we use activity diagram to generate the top level flow chart for representing the workflow of an application. And last point is to represent a high level view of distributed or an object oriented system, we use the activity diagram. Business flow activity of order processing. This is a example of order processing. Here we use request some order, then this is a starting point, and we request some order. After that we receive an order, and order is there is this is a decision box, order accepted or not. If order rejected, if you reject the order, then it move towards the close your order, then this is true and this is false. If this decision box give output as a false, means order has been rejected, then move towards here and then close the order. If it is true, then fill the order. Again fill the order can have two options, send invoice or save the order. Send invoice, then invoice, accepted payment, and you got the order close. So, this is the business flow activity of order processing. What is event and what is signal? There are basically two different things, event and signal. In state machine or sequence of state, we use event to model the occurrence of a stimulus that can trigger an object to move from one state to another state. Event may include signal, calls, the passage of time, or a change in state. These are the event that include signal, calls, passage time and change of state. In UML, each thing that happens is modeled as an event. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में जो भी जिस भी चीज़ को मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो इवेंट है. दिस इज द बेसिक फंडा. एन इवेंट इज द स्पेसिफिकेशन of a significant occurrence that has a location in time and space. A signal, passing of time and change in state are asynchronous event. So, there are two type of events, synchronous and asynchronous. Asynchronous event, when signal passing of time and change in state, then it is asynchronous. Calls are generally synchronous event representing invocation of an operation. So, third point is the UML allows us to represent event graphically as shown. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्नल में बी रिप्रेजेंटेड एज स्टीरियोटाइप्ड क्लासेज. स्टीरियोटाइप्ड क्लासेज में सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एंड अदर इवेंट आर रिप्रेजेंटेड एज मैसेज एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन.
which cause an object to move from one state to another state. Type of event. Event may be external और internal. कई टाइप की इवेंट होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट. इवेंट पास बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एक्टर आर एक्सटर्नल इवेंट. इवेंट पास बिटवीन द सिस्टम और जो इसके एक्टर्स इसमें यूज करते हैं हम, वो ये जो एक्टर्स हमने यूज किए हैं, दीज आर द एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एक्टर्स आर एक्सटर्नल. फॉर एग्जाम्पल, इन एन ATM सिस्टम, पुशिंग अ बटन और इंसर्टिंग अ कार्ड आर एक्सटर्नल इवेंट. ATM में जब भी आप जाते हो तो आपने ATM मशीन में कार्ड इंसर्ट किया, बटन प्रेस किया, ये सब किस टाइप की इवेंट है? दीज आर द एक्सटर्नल इवेंट. इंटरनल इवेंट क्या हो गई ATM में? इंटरनल इवेंट आर दोज दैट आर पास अमंग द ऑब्जेक्ट लिविंग इनसाइड द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, ओवरफ्लो एक्सेप्शन जनरेटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटरनल इवेंट. तो जो भी आप परफॉर्म करते हो, एंड यूजर जो परफॉर्म करता है बैंक में ATM के अंदर, वो इवेंट क्या है? वो इवेंट सारी कितनी हो गई? एक्सटर्नल इवेंट हो गई. जैसे कि आपने सबसे पहले आपने जाके बटन प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, या फिर आपने कार्ड इंसर्ट किया, ये सारी इवेंट क्या होंगी? एक्सटर्नल इवेंट का पार्ट है. और जो अंदर जो ऑब्जेक्ट आप जो हो रहा है विद इन द सिस्टम, वो जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट का इंटरनल इवेंट की फॉर्म में आता है. क्योंकि जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो क्या हुआ? एक सिग्नल प्रोसेस हुआ कि अब कार्ड को इंसर्ट कराना है. तो इस टाइप की जितनी भी इवेंट हो गई, वो सारी इवेंट क्या हो गई? वो ऑब्जेक्ट की इंटरनल इवेंट हो गई. इन UML वी कैन मॉडल 4 काइंड ऑफ इवेंट. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में देयर आर 4 टाइप ऑफ इवेंट, मेनली सिग्नल्स, कॉल्स, passing of time and change in state. These 4 type of events are the events in UML, Unified Modeling Language. Now, signals and calls. Basically, what is signal? What do you mean by signal? And what do you mean by calls? Signal named object. Signal is a named object and is sent asynchronously by one object and then received by another. एक्सेप्शंस आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल. अब आपने देखा होगा, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, यहाँ पे आपने कई सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ पे कोडिंग के पार्ट में कुछ एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट डील किया होगा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो जो वहाँ पे एक्सेप्शंस आती हैं, जब आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट जावा में यूज़ कर रहे हो या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आती हैं. ये एक्सेप्शंस क्या हैं? दीज एक्सेप्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल्स. अ सिग्नल मे बी सेंट एज द एक्शन ऑफ ए स्टेट इन ए स्टेट मशीन और एज ए मैसेज इन एन इंट्रैक्शन. द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन कैन ऑल्सो सेंड सिग्नल. कोई भी ऑपरेशन है, एग्जीक्यूशन उसका हो रहा है, तो वो भी सिग्नल सेंड कर सकता है. बेसिकली सिग्नल एक इवेंट है, एसिंक्रोनस इवेंट है, जो कोई भी एग्जीक्यूशन ऑपरेशन जो है वो सेंड कर सकता है. ये बेसिक फंडा है. और एक्सेप्शंस आर द फेमस एग्जांपल ऑफ द सिग्नल. कॉल क्या है? कॉल इवेंट रिप्रेजेंट द डिस्पैच ऑफ एन ऑपरेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. डिस्पैच ऑफ एन ऑपरेशन. अ कॉल इवेंट में ट्रिगर अ स्टेट चेंज इन ए स्टेट मशीन. जब भी कॉल इवेंट अकर होगी तो क्या होगा? स्टेट इवेंट में ट्रिगर द स्टेट चेंज, तब वहाँ पे स्टेट चेंज परफॉर्म होगा. बेसिकली इन जनरल अ कॉल इवेंट इज सिंक्रोनस इन नेचर. दिस मीन्स दैट द सेंडर ऑब्जेक्ट मस्ट वेट until it gets an acknowledgement from the receiver object which receives the call event. For example, consider the state of a customer in an ATM application. तो यहाँ पे जो कॉल इवेंट है वो किस टाइप की इवेंट हो गई? सिंक्रोनस हो गई. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल इवेंट सिंक्रोनस हो गया. सिंक्रोनस के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक्नॉलेजमेंट जब भी मिलेगा. और यहाँ पे क्या होगा? स्टेट चेंज होगा. कॉल इवेंट के केस में स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज के केस में आपको एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव आप करोगे. स्टेटमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करोगे फ्रॉम रिसीवर ऑब्जेक्ट विच रिसीव द कॉल इवेंट. तो आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव कर रहे हो.
जैसे एक इसका एग्जांपल बताया गया है कि यहाँ पे एटीएम का एप्लीकेशन में कस्टमर इज ए स्टेट ऑफ ए कस्टमर इन एन एटीएम ऑपरेशन, एटीएम एप्लीकेशन इज ए कॉल इवेंट। टाइम एंड चेंज इवेंट, टाइम एंड चेंज इवेंट क्या होती है? अब टाइम इवेंट रिप्रेजेंट द पासेज ऑफ टाइम, मीन्स आप UML में जैसे जैसे आप मॉडल करोगे, क्रिएट करोगे, द टाइम इवेंट यूजिंग आफ्टर कीवर्ड, जब भी आफ्टर कीवर्ड का यूज किया गया है, ये आफ्टर कीवर्ड है, इसके बाद इस कीवर्ड को फॉलोड, दिस कीवर्ड आफ्टर फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट द पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने टाइम के बाद, या मतलब यहाँ पे आफ्टर कीवर्ड यूज करोगे, उसके बाद बताओगे आप कि टाइम पीरियड। अ चेंज इवेंट represent an event that represents a change in state or satisfaction of some conditions, means in UML change event is modeled using the keyword when। तो दो हमने यहाँ पे कीवर्ड देखे, फर्स्ट कीवर्ड इज द आफ्टर कीवर्ड एंड सेकेंड कीवर्ड इज द when कीवर्ड। दिस इज द आफ्टर कीवर्ड एंड यूजिंग आफ्टर कीवर्ड followed by the time, followed by the time span, and the when keyword followed by the some boolean expression, means कि कब ये परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप boolean expression दोगे when के साथ में और after के साथ में आप दोगे टाइम के फॉर्म में। तो ये इवेंट और सिग्नल हो गए। ये मैंने बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटी ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपको बताया था। आपको कब यूज करना है, when, why, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है एक्टिविटी डायग्राम, why we use एक्टिविटी डायग्राम एंड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर हमें पता हो कि हमें कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है एक्टिविटी डायग्राम, तो हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो why we use एक्टिविटी डायग्राम, इवेंट इज क्रिएटेड एज एन एक्टिविटी डायग्राम, an event is created an activity diagram, the group of node and associated with the edge, कई मीन्स नोड्स होंगी और एजेज होंगी, तो एक्टिविटी डायग्राम परफॉर्म हो जाएगा। टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ द एक्टिविटी दे कैन बी अटैच टू एनी मॉडलिंग एलिमेंट, इट कैन मॉडल यूज केसेज, क्लासेज, इंटरफेसेज, कंपोनेंट्स एंड कोलैबोरेशन। तो एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटरफेसेज, मॉडल, कंपोनेंट, कोलैबोरेशन। तो ये चारों पॉइंट जो है ना, ये कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस यूज कर सकते हैं, इंटरफेसेज एंड क्लासेज, दीज एंड यूज केसेज ऑल्सो, इट कैन मॉडल ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। इट मेनली मॉडल्स प्रोसेस एंड वर्क फ्लो। जब भी प्रोसेसेस की बात आती है, वर्क फ्लो की बात आती है, तब हम एक्टिविटी डायग्राम को ऑप्ट करते हैं। Envision the dynamic behavior of a system as well as the construct a runnable system that incorporate forward and reverse engineering, means dynamic behavior of system। जब भी static behavior की बात होती है तो एक्टिविटी डायग्राम नहीं बनता। आप ध्यान से समझिए इस बात को, एक्टिविटी डायग्राम जब भी डायनेमिक बिहेवियर की बात आती है सिस्टम के, स्टैटिक बिहेवियर होता है और एक डायनेमिक बिहेवियर होता है। जब हम स्टैटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो एक्टिविटी डायग्राम नहीं बनाते, क्योंकि उस केस में आइडल कंडीशन में रहेगा हमारा इवेंट। अब यहाँ पे हम जब भी डायनेमिक की बात करेंगे, डायनेमिक बिहेवियर की बात करेंगे, डायनेमिक मॉडलिंग की बात करेंगे, देन वी यूज द एक्टिविटी डायग्राम। इट एनविजन ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम as well as the construct a runnable system that incorporate the forward and reverse engineering. It does not include the message part, means activity diagram does not include the message part, which means message flow is not represented in an activity diagram. यहाँ पे message flow नहीं represent करोगे activity diagram में, okay. It is the same as that of a flow chart. ये flow chart और ये एक्टिविटी डायग्राम दोनों एक ही जैसे हैं, बट हम इसको फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते, लेकिन देर आर वेरियस सिमिलरिटी इन एक्टिविटी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट डायग्राम. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिपिक्ट द फ्लो बिटवीन सेवरल एक्टिविटी. कई सारी एक्टिविटीज़ के फ्लो को भी डिपिक्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम हम यूज करते हैं. अब एक बात आती है, व्हेन टू यूज एक्टिविटी डायग्राम.
एक्टिविटी डायग्राम आपको कब यूज करने हैं? टू ग्राफिकली मॉडल द वर्क फ्लो in an easier and understandable way we use activity diagram. तो ग्राफिकली आपको बताना है वर्क फ्लो कैसे हो रहा है, तब आप एक्टिविटी डायग्राम का यूज करोगे. टू मॉडल द एग्जीक्यूशन फ्लो अमंग द सेवरल एक्टिविटी, कई सारी एक्टिविटीज गिवन है, उसके बीच में आपको एग्जीक्यूशन दिखाना है, देन यू यूज द एक्टिविटी डायग्राम. To model comprehensive information of a function or an algorithm employed within the system, then you use activity diagram. To model the dynamic aspect, मैंने बताया आपको कि डायनेमिक आस्पेक्ट और स्टैटिक, तो यहाँ पे जब भी डायनेमिक बिहेवियर की बात हो रही है तब आपको एक्टिविटी डायग्राम यूज करना है. टू जनरेट द टॉप लेवल फ्लो चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग द वर्क फ्लो ऑफ एन एप्लीकेशन यू यूज द एक्टिविटी डायग्राम. And to represent the high level view of distributed or an object oriented system you use the activity diagram. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आपको एक्टिविटी डायग्राम मेंटेन करना है, बनाना है, एंड कब यूज करना है ये भी आप इसके थ्रू बता सकते हैं. नाउ ये बिजनेस फ्लो एक्टिविटी डायग्राम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन डिटेल. Then event and signal I already explained these topics also. Process order, business flow activity of the order. Okay, now इसमें एक चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे जब भी आप डिसीजन लोगे, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? इट इज़ ए डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स के टाइम पे जब भी कोई इवेंट आएगा, जब भी कोई इवेंट परफॉर्म करेगा, तब ये डिसीजन आइदर ट्रू और फॉल्स होगा. There are two type of decision, either it may be true or it may be false. If it is true, then next fill the order, and if it is false, then false means it is rejected, then order will be rejected, this move towards the close the order. अब अगर ऑर्डर परफॉर्म किया आपने एंड इट इज़ ट्रू, देन ये यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस के फॉर्म में, इनवॉइस सेंड इनवॉइस और शिप द ऑर्डर, दो प्रोसेस हैं यहाँ पे भी. देन अगेन सेंड इनवॉइस, इनवॉइस एक्सेप्टेड, पेमेंट हो गया, देन अगेन आफ्टर पेमेंट ऑर्डर इज क्लोज्ड. तो पेमेंट हो गया, इनवॉइस सेंड हो गई, देन शिप द ऑर्डर एंड देन इट इज क्लोज्ड. देयर आर टू सेपरेट प्रोसेस, सेंड इनवॉइस, एक्सेप्ट पेमेंट, शिप द ऑर्डर. These are the business flow activity of the order processing system. I already explained you what is event, what is signal, event, state machine. Basically event क्या है? In state machine, sequence of states, or we use events to model the occurrence of a stimulus that can trigger an object to move from one state to another state, and this is the event. Event may include the signal, calls, passage of time and change in state. Means जब भी कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, और उसको वी यूज इवेंट टू मॉडल द अकरेंस ऑफ ए स्टिमुलस दैट कैन ट्रिगर द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड दिस इज नोन एज द इवेंट. इवेंट में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिग्नल भी. और सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल इन UML इज थिंग दैट हैपन इन मॉडल एज एन इवेंट, जिसको भी मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में, उसको हम इवेंट कहते हैं. ओके, एन इवेंट इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट अकरेंस दैट हैज सम लोकेशन एंड टाइम इन स्पेस. टाइम लोकेशन इन टाइम एंड स्पेस, दैट इज नोन एज द इन यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं. तो इवेंट सिग्नल हो गया, देन टाइप ऑफ इवेंट, सिग्नल कॉल्स एंड टाइम एंड इवेंट चेंजेज. Time and event changes may be used after and when keyword, and this is the references. James Ramborg, Object Oriented Modeling and Design, PHI, we use this book. Thank you so much.